So student, in last class we have understand what is the permutation and how can we apply theorem first, theorem second and theorem third. So in this video, in this series, we have take some example. First is someone is drawing. So what is the question? The question is that find the value of n such that we have this equation. What is this? The मैम, n, yes, आपने जो कल क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन था इंडिपेंडेंस वाला। independent. We have take. Okay, now after this example, we ओके have मैम। take. Okay, now. ओके ओके। So n p5. We have this example n p5 close to 42 n p5. What is given then n is greater than 4. So we just want to find the value of n. So how can we find? So we just what is given np5 equals to 42 np3. We just open this np5. What is np5? N minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. And what 42 and n minus 1 and minus 2. So this term is cancelled out by this. So we have n minus 3, n minus 4 equals to 42. So we have this. So we have just solve this equation n square minus 7s minus 32. Then it is the quadratic equation, and we have it is a quadratic equation. I think you are able to solve the quadratic equation. So we have, how can we open n square minus 30? So minus 10n plus 3n minus 30. So the value of we have solved when we have got n equals to 10 and n is minus 3, but n is always positive. When permutation case is there, so n is always positive. And also in given the question n is greater than 4. Why n is greater than 4? It is 5. It is 5. So means ये r है आपका, r का वैल्यू या तो n is equals to r होगा या n is greater than r. So n is 10. When you have solved this, then you have got the n is 10. So if you have this type of question, you have just open np5 and np3 and just cancel out all the term whatever is cancelled, and just apply quadratic rule, and you have solved the value of n is 10. Yes, Sitisha, it is clear? यस मैम। Okay. So we have take find the number of arrangement. Next example is find the number of arrangement of the letters of the word independency. We have a letter independency. In how many way of these arrangement possible? So first of all, you just find the what you want find. Find the number of arrangement of the letter of word independency. So total number of arrangement by this word without any condition. So you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total number of letters कितना आपके पास? It is n is 12. So in this we say that some letters is repeat, and n is repeat one time, two times, three times, and we see the d is repeat one time and two time, e is repeat one time, two time, three time, four time. So n, e and d is repeated. So we have applied theorem third. So what is a factorial 12? How can we solve factorial 12 divided by 4 factorial? 4 टाइम ई है, 3 टाइम n है and 2 टाइम d है. So total number of possible arrangement by this word independency without any condition, it is this. When we have solved, so we have got some digits. So it is a total number of arrangement. So first question, what is the first question? Do the word start with P? Means your word means आप ये independency letter when you have take, so word कहाँ से start होना चाहिए? Word should be start from P. P से start होना चाहिए. The condition is this, the start from P. So how can you solve? Yes, Sitisha. Then what is the possible number of arrangement? So what is the condition? P से start होना चाहिए.
आई एम फिक्स फर्स्ट पोजीशन, आई एम फिक्स, मैंने फर्स्ट पोजीशन को क्या किया, आई एम फिक्स द फर्स्ट पोजीशन, तो पी एम मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कितना, हाउ मेनी लेटर्स आई हैव लेफ्ट, 11 लेटर 11. आई हैव, सो 11 लेटर तो मुझे अरेंज करना है यहाँ पे, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द चेंज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यस Yes, ma'am. 11 फैक्टर, तो सेम वहाँ 11 है, इन 11 लेटर्स वी हैव 4 E, 3D, sorry 2D and 3L. So the formula is same. We have applied this to 11 factorial divided by 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial. So when the word is start with P. So first question is clear. Yes, ma'am. Then what is the second question? Second question is this: do all the vowels utter together? What is the question? Do all the vowels always utter together? So 1 minute, I will clear this whole erase. Okay. So first question is complete. Second क्या है? Do all the vowels utter together? Means is independent letter we have some vowels. What is first is I है and E. E is the vowels in this letter. तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 लेटर्स कितने हैं, वी हैव 5 vowels. ओके 5, सॉरी आई एम नॉट राइटिंग फैक्टोरियल, 5 है मेरे पास, टोटल कितना है 5. तो व्हाट इज द कंडीशन कि ऑल द वोवल्स, ये जितनी भी वोवल्स है ना ई और आई, मीन्स सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस आई, देन ई, ये ई, ये मेरे एक साथ आना चाहिए, इज ऑलवेज अटर टूगेदर. तो मेरा ये 5 लेटर्स है, तो इट इज फिक्स, ये पोजीशन फिक्स हो गया कि इट ऑलवेज कम टूगेदर. सो देन वी हैव लेफ्ट, कितना लेफ्ट रहा मेरे पास, आई हैव 7, ये 5 हो गया तो 7 बचा, आई हैव लेफ्ट 7, यस इतिशा, Yes, ma'am. ओके 7. तो 7 बचा, आई हैव लेफ्ट 7. सो ये मैंने इसको अज्यूम कर लिया 1 लेटर, ये साथ में आ रहा है, इट इज फिक्स, सो आई अज्यूम इट इज 1 एंड इट इज टोटल, ये कितना है 7. सो कितना हुआ, टोटल लेटर्स कितने हुए मेरे पास 8, तो 8 तो ये हो गया. अब इन 8 लेटर्स में क्या रिपीट हो रहा है, ई तो वी हैव नॉट काउंट, ई इसमें वी हैव नॉट काउंट बिकॉज वी हैव काउंट इट इज 1. so we have n 3 times and d is 2 times, so I am just writing 3 factorial and 2 factorial. So first part is clear, so but we have this letter I E, so इनका क्या sequence रहेगा, इनको में how many way we can arrange this, so how can we arrange this, so we have 5 letters, so 5 divided by 4. Why 4? Because I have a E 4 times, so we have divide 4. So answer is, so I have just to solution of first is given. Okay, second में क्या था, so we have find there are 5 vowels in the given words which are 4 E and 1 is 1 I. So since what is the condition, they have to always occur together, so we treat them as a single object, we have treat them E I. So for the time being, this single object together with 7 रहा मेरे पास, so 7 remaining object will account for 8 objects. So these 8 objects in which they are 3 N's and 2 D's can be rearranged. So we can arrange by, we have applied theorem third. So it is this. Then what is this? We have this letter corresponding to each of these arrangement, means I am just writing first, मैंने ऐसे लिख दिया, suppose I want to write I E, तो E, then what is the possible arrangement of this letter, ये अभी तो मेरे पास 5 है, so what is the possible arrangement of this letter, so it is the 5 factorial divided by 4 factorial. Why 4? Because we have a 4 time E, so I am just writing 4 factorial way. So first part is this, second part is this. So मुझे क्या find करना, I want to find the total number of arrangement. The total number of arrangement means, therefore we have applied the multiplication principle. The required number of arrangement is 8 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, multiply 5 by 4. So it is 16800, means the total number of arrangement when all the vowels is uttered together, it is 16800. Yes, this part is clear. Yes, ma'am. Okay.
Then what is the third question? The third question is this. Second is complete. Third is, do the vowels never utter together? यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? Do the all vowels utter together? And in this third question, it is just opposite of this. Do the vowels never utter together? So how can you find? आपके पास है कि ये अतर होने के लिए कितना आ रहा है, यू नो कि जब वोवल सारे एक साथ है तो देन इट इज 16800 एंड टोटल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इंडिपेंडेंसी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यू हैव, so you can easily calculate do the vowels never utter together means you just subtract the required number of arrangement means the total number of arrangement without any restriction, so it is this, and the number of arrangement where all the vowels is uttered together we have calculated last question, it is 16800, so it is the total number of arrangement when vowels are not uttered together. Okay, so this part is your first part. First part means you have solved here, it is a total number of arrangement of the independency letter without any restrictions, and this is the total number of arrangement when all the vowels is uttered together. Then what is this? This is the arrangement of letter when do not utter any vowels together. Yes, this part is clear? Yes, ma'am, clear. ओके ना, मीन्स ये हो गया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना है, उसमें से प्रेजेंट इतना है, तो यू कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ एब्सेंट जस्ट लाइक दिस. ओके, third part is complete. Then fourth, do the word begin with I and P? You just try, Tisha, how can we solve? What is the condition? Do the word begin with I and P means I said your word is start from I and finish on P. It is my condition. Then you have 10 place. You have 10 place left. You have 10 place left. So how can you solve? Yes. I से start करना है आपको, P पे finish करना है. So two position is fixed. Two position is fixed. I से start होना चाहिए and P पे I want to finish. Then you have a 10 position means आपके पास total number of letters कितना रहा? It is 10. So how can you solve? Yes, Itisha. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, 10 factorial upon 4 factorial, 3 factorial. Yes, 10 factorial, 3 factorial and 2 factorial भी आएगा ना, D भी है, D is repeat 2 times. Okay, so 2 factorial. Okay, Yes. so it is the do the word begin with I and P. Okay, so fourth is complete. And fifth, what is the fifth? Repeat part fourth. Fourth part को आपको repeat करना है with I and P are interchangeable. यहाँ पे what is the condition? यहाँ पे I am fixed कि starting I से and P is finish on P. But here what is the condition? Condition is this: do the word begin with I and P, but I and P are interchangeable. Means मैं P से भी start कर सकती हूँ and I पे finish कर सकती हूँ. Then what is the possible arrangement? Yes, it is just same like यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया था ना सेकंड में मल्टीप्लिकेशन. हाउ, एनी आइडिया? No, ma'am. तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर है कि डू द वर्ड इज बिगिन विद आई एंड पी. आई से स्टार्ट है, पी से फिनिश है. यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कुछ आएगा. ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन? इसने कंडीशन दे दिया कि आई एंड पी आर इंटरचेंजेबल. मींस सपोज मेरा आई यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पी पे फिनिश हो रहा है. अब मेरा नेक्स्ट क्या हो सकता है? पी से स्टार्ट हो और आई पे फिनिश हो. सो वी हैव कि टू वे में वी कैन अरेंज दिस. सो इट इज फैक्टोरियल 2. यहाँ पे हमने निकाला था ना कि 5 वर्ड था, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4. तो क्या था ना, ऑल द वोवेल्स आई, यू हैव 5 लेटर्स. 5 लेटर्स में आपके पास, so it is the arrangement of 5 letters is 5 factorial divided by 4 e है, तो ये I'm just divide by 4 factorial. So it is this. Repeat same part as fourth, जो fourth का था. But what is the condition? I and P are interchangeable. They can further be arranged in two way. हम इसको भी two way में arrange कर सकते हैं. तो it is
आपने last question when you have solved, it is 10 factorial divided by this, so you have got 12600. Then I and P are interchangeable. अब in this question what is the condition? P and I को आप interchange कर सकते, तो how many way you can arrange? It is factorial 2, so you just multiply by factorial 2, so it is 25200 ways. Yes, this question is clear. Yes, ma'am. Okay now. Okay, so next we will start the circular permutation. Okay, circular permutation, what is this? Suppose in how many way can three students seated in a circular round table? You have a round table, so how many ways can three students seated? Yes, Tisha, what is your answer? Suppose I have Two, ma'am, 2 to the power 3. Like 2 to the power 3. How can it is possible? We have a three position, suppose 1 2 3. So what is the possible number of arrangement? कितने वे में यहाँ पे मतलब ये है राउंड टेबल. सपोज ये राउंड टेबल का छोड़ते, अभी तक हमने पढ़ा लीनियर परम्यूटेशन. तो लीनियर परम्यूटेशन में मीन्स यू हैव अ थ्री पोजीशन 1 2, आपके पास थ्री पोजीशन है, थ्री स्टूडेंट को सिट करना है. सपोज यहाँ पर 1, सपोज ए यहाँ पर आ गया, बी हो गया, सी. फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इन दिस लीनियर परम्यूटेशन में ए बी सी. सेकंड क्या हो सकता है? सपोज ए है एंड ये यहाँ पे सी आ गया, देन यहाँ ये इज बी, तो सो ऑन. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन क्या होता है? सॉरी, 3 फैक्टोरियल मीन्स टोटल इज 6 when the permutation is linear. अगर आपको एक लाइन में एक रो में अरेंज करना हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट इज when you have 3 स्टूडेंट then you have 6 वे. आप 6 वे में इसको अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे बी ले लिया, फिर बी, फिर सी, तो यू हैव 6 वे. बट इन सर्कुलर में कितना होगा पॉसिबल? यू हैव एनी आइडिया? 6 होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा? यू जस्ट गिव योर ओपिनियन. मैम आई थिंक कम होगा. ओके, चलो कोई ना. सो ये मैंने जो सर्किल में आई हैव अरेंज, यहाँ पे मैंने जैसे अरेंज किया ना ए बी सी, ए सी बी. ओके, ये मेरा लीनियर परम्यूटेशन, तो यहाँ पे मैंने सर्किल बना दिया. सो सपोज आई एम राइटिंग हियर ए बी सी. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ए बी सी. देन लिखा मैंने ए सी बी, जो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए सी बी. ओके, तो एंड नेक्स्ट सपोज मेरा क्या स्टार्ट होता है? ए सी बी हो गया, तो सपोज अब बी से स्टार्ट हो रहा, तो क्या आएगा? बी, यहाँ पे ए लिख सकती हूँ मैं, बी ए सी. तो बी ए सी लिखा, तो कहाँ पर है ये? बी ए सी. ओके, ऐसे मैंने जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ना लीनियर परम्यूटेशन, तो वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, उसी सीक्वेंस में अरेंज कर दिया. बट द क्वेश्चन इज दिस इज ए बी सी. ये सर्किल है, सर्किल में कोई जगह मतलब कोई पोजीशन फिक्स नहीं है. इट इज द राउंड सर्किल, ये राउंड है, ये ए बी सी, ये इट इज जस्ट लाइक ए क्लॉक. जैसे घड़ी नहीं होता वैसे क्लॉक. सो ए बी सी. अगर मैंने व्हाट इज द सर्किल में व्हेन यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, आपका ए है, ए के फ्रंट में क्या है? ए के सपोज ऑन माय साइड, वन साइड सी है और वन साइड बी है. तो सपोज इसको मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया, तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या था? ए बी सी. तो हियर भी क्या हुआ? ए बी सी. व्हाट इज दिस? ए बी सी सीक्वेंस इज सेम. यस, अगर सर्किल को थोड़ा सा मतलब मूव कर दो, जैसे यहाँ पे इसको मैं थोड़ा, यहाँ पर है ऐसे, तो उसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, तो व्हाट इज दिस? इट इज आल्सो ए बी सी. यहाँ पर भी ए बी सी, यही सीक्वेंस चल रहा है. Here I am just see कि it is A C B. तो सेम यहाँ पे क्या हो गया? A C B and it is again A C B. So we have a total possibility कितना हुआ? या तो इसको ऐसे अरेंज कर दो या इसको अरेंज कर दो. So it is the first arrangement and it is the second arrangement. So answer is this. What is the answer? There are two possible arrangement. There are two possible arrangement of when you have a three student
उनको how many way you can arrange? You have arranged 2 possible arrangement. It is a manual question. हमने कोई formula apply नहीं किया. We have not applied anything. We have just observed. So we have there are 2 possible arrangement. Okay, this question is clear. Yes, ma'am, clear. Okay, so next example I'm just take find the number of different way that a family of six can be seated around a circle table with 6 chair. Means मेरे पास 6 family member है, 6 chairs है. Same question, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 है. So how can we arrange? So you know when we have a row, in row में कैसे arrange कर सकते हैं? यहाँ पे first 2 3 4 5 6 we have a 6 position. So यहाँ पे क्या होता है? First position पे each, यहाँ पे first person कुछ भी आ सकता है. Maybe family member are you just dividing A B C D E F तक यहाँ पे. तो what is the possibility? यहाँ पर A भी बैठ सकता है, B भी, C भी. तो what is the answer for the linear permutation? It is 6 factorial. Yes, Itisha. यहाँ पे कोई भी आ सकता है. It is anyone can. Each slot is different to other, so anyone can sit it. So what is the number of way? यहाँ पे 6 way में, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1. So total possibility is 6 factorial. It is a factorial 6. So I'm just here the first person यहाँ पे sit होने का 6 way है. यहाँ फर्स्ट पोजीशन फिल हो गया, तो वी हैव अ 5 मेंबर एंड 5 पोजीशन. सो सेकंड में कितना आएगा? सेकंड में 5 वे एंड 5 वे. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. सो बट इन सर्किल क्या होता है? अरेंज 6 पीपल इन अ सर्किल. तो आई एम जस्ट अरेंज, मैंने अरेंज किए दिया. सो यस, फर्स्ट पर्सन के पास कितना ऑप्शन है हियर? व्हाट इज द ऑप्शन फॉर द फर्स्ट पर्सन? 6. यहाँ पर 6 तो मैंने क्लोज ही कर दिया. ये तो आपको आंसर दिख ही रहा है कि 6 नहीं होगा. देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड? कितनी चॉइस है उसके पास? इट इज अ सर्किल. इट इज 5. यस, इट इज द 5. यस, यू जस्ट एक्सप्लेन. ओके मैम 6 है पूरी, तो खुद की जगह को कितना बनेगा वो? अरे 6 है तो पूरी कुछ तो एक्सप्लेनेशन दे दो कि मैम 5, उसके पास 5 फर्स्ट पर्सन है. भाई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ बैठेगा या इट इज हियर. सो उसके पास कितना ऑप्शन है कि वो कहाँ पर बैठ सकता है? हाउ मेनी चॉइस? कितनी चॉइस है? सपोज आपको ले लीजिए, आपके पास सर्किल है, तो व्हाट इज योर चॉइस? मतलब कितनी चॉइस होगी आपके पास? जैसे हमने यहाँ पे रो में अरेंज किया, सेम यहाँ सर्किल है, तो व्हाट इज योर चॉइस? यस, आपने 5 दिया है, तो हाउ कैन यू गिव द 5? बट इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अ राइट. सो फर्स्ट पर्सन है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? तो सपोज मैंने चेयर्स ही लगा दी यहाँ पे ना. सपोज ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सिट होता है, यहाँ पे इट इज सिट. तो व्हाट इज दिस? इसका सिनेरियो क्या दिख रहा है इसको? इसके फ्रंट में you have 3 person. 3 है, 1 is left, 1 is right. You have a just choice, 1 is left and 1 is right. Okay, it is a circle. उसे क्या दिख रहा है कि उसके फ्रंट में 3 chairs है, 1 is left and 1 is right. Suppose I'm just change the position. मैंने इसका position change कर दिया. अरे 1 minute यार, what is this? It is all inside. Okay, suppose ये यहाँ पे सिट कर लेते हैं इसको. अब भी क्या दिख रहा है इसको अपने फ्रंट में कितना दिख रहा है? ये है 3 चॉइस. ये इसके फ्रंट में 1 is left, 1 is right. मींस ये किसी भी पोजीशन पे बैठे. सपोज यहाँ पे बैठा तो भी सेम सिनेरियो है कि भाई मेरे फ्रंट में तो 3 चॉइस है, 1 2 3 पर्सन कैन बी सिट एंड 1 is left and 1 is right. So suppose I'm taking another. Suppose I'm taking this chair कि मुझे यहाँ बैठना है. What is the condition? Again he have a 3 choice. 3 फ्रंट में है और 1 is left, 1 is right. तो मीन्स ये कहीं पर भी बैठे, किसी भी सीट पे, यहाँ any seat, any chairs. तो what is the scenario? Scenario क्या है इसके बाद कि यहाँ पर भाई मेरे 3 फ्रंट में है, 1 is left and 1 is left. right और left में 1 person है. So in this
द फर्स्ट पर्सन हैव ओनली वन चॉइस, वन वे, मतलब ये कहीं पर भी सिट हो जाए उसका सिनेरियो सेम रहेगा कि इसके वन लेफ्ट है, वन इज राइट एंड थ्री इज फ्रंट. सो देन वन पर्सन इज सिटेड, ही हैव ए वन वे, मतलब उसके पास ओनली वन चॉइस होता है बैठने का. यस. अब एनीवन कैन गिव द आंसर ऑफ सेकंड पर्सन कि सेकंड पर्सन के पास हाउ मेनी चॉइस? मैम 2. ओके, हम चेयर्स पे चले वापस. यस मैम चलो. हाँ, चेयर्स पे थोड़ा इजीली आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीच, तो मैंने ये वाला फर्स्ट है, ओके ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया, ये फर्स्ट पर्सन के लिए पहले से रिसीव है. अब आइए 5. अब आप बोल रहे हो कि सेकंड वाले के पास चॉइस है 2. हाउ कैन? सपोज सेकंड पर्सन को मैं यहाँ सिट कर दूं, ये मैंने सेकंड तो यहाँ सिट बिठा दिया भाई. तो सेकंड पर्सन की क्या हुआ? ये इसके लेफ्ट में हुआ. यू जस्ट अज्यूम इट इज लेफ्ट, इट इज राइट. उसके फ्रंट में कितना है? फ्रंट में कितना है? 3. ओके यस ओके, मैम. दिस सिनेरियो इज क्लियर. बट सपोज इट इज अ, सपोज मैंने यहाँ पे इसको बिठा दिया होता, सेकंड पर्सन सपोज इट सिट हियर, सपोज ये इसके राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है? लेफ्ट में. अरे अभी ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है. इट इज फ्रॉम द, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट हुआ इसका, इट इज राइट, ये राइट में हुआ. सपोज सेकंड पर्सन यहाँ सिट होता सपोज, सो ये इसके किस में आया? राइट में या लेफ्ट में? ये इसके राइट में हुआ. इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है? इसके लेफ्ट में ये आ रहा है, उसके फ्रंट में है. तो इसका कंडीशन चेंज हो रहा है. अगर ये यहाँ सिट होता है तो उसके लेफ्ट में ये आ रहा है और राइट में ये आ रहा है. सॉरी, आई विल क्लियर, देन आई विल अगेन स्टार्ट. सपोज द सेकंड पर्सन इज सिट हियर, यहाँ पे सिट हुआ, तो ये इसके लेफ्ट में हुआ, ये इसके राइट में हुआ. ओके, और इसके फ्रंट में 3 है, 1 2 3. ओके, सपोज सेकंड पर्सन इज सिट हियर, तो ये इसके लेफ्ट में हुआ. अब इट इज लेफ्ट, इट इज द, ये राइट है, इसके फ्रंट में ये 3 है. तो व्हाट, बोथ आर द पोजीशन सेम? पोजीशन सेम है या चेंज हो रहा है? मैम सेम. सेम कैसे हुआ? ये इसके लेफ्ट में है. मैम बस मैम ये जो सेकंड पर्सन है उसका जो लेफ्ट है वो राइट, मतलब कि जो सामने वाले का जो, सपोज मैं यहाँ सिट हो चुकी हूँ ना, आई हैव रिजर्व दिस चेयर. तो ये सेकंड पर्सन चूज करता है कि मुझे कौन सी सीट पे आई वांट टू सिट. तो ये यहाँ सिट होता है, तो देखता है अच्छा मेरे लेफ्ट में कोई नहीं है, अभी राइट में ये है. ओके, so it is one choice, मतलब इसके पास फर्स्ट चॉइस इज दिस, फर्स्ट चॉइस इज दिस. ओके, सेकंड अगर ये यहाँ पे सिट होता है तो ये देखता हो मेरे लेफ्ट में ये आ रहा है लेकिन राइट में अभी कोई नहीं है, तो यू हैव अ सेकंड चॉइस. यहाँ पे सेकंड चॉइस होगी. सपोज द पर्सन इज सिट हियर, यहाँ पे सिट होता है, तो व्हाट इज द कंडीशन? तो मेरे लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है बट मेरे फ्रंट में कोई है. सो ये हैव अ 3 चॉइस. सो मीन्स अगर सपोज ये यहाँ पे बैठता है तो ये फिर देखता है कि मेरे लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है बट मेरे फ्रंट की साइड में कोई है, तो ये हैव अ 4 चॉइस. सेम एज यहाँ पे इफ यू हैव सिट 5, सो सेकंड पर्सन हैव अ 5 वे, ही कैन सिट 5 position. Yes, this is clear? Yes or no? Yeah, I will explain again. मैम क्लियर. Yes, other student it is clear? नो मैम. No. अरे वापस एक्सप्लेन कर देते हैं. नो वाला पोर्शन ही नहीं आना चाहिए. आई विल अगेन इरेज. देखो ये फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया. फर्स्ट वाला यस मैम. मैंने फर्स्ट वाले को यहीं सीट आप बिठा के रखा, भाई चेंज नहीं किया इसका. अब मुझे सेकंड को बिठाना है, तो सपोज सेकंड पर्सन चूज दिस चेयर, ये चेयर वो चूज करता है. ओके, तो ही हैव सीन, क्या देखता है कि मेरे लेफ्ट में कोई नहीं है अभी और राइट में कोई नहीं है. अभी तो ब्लैंक है ना, तो सेकंड टाइम सेकंड पर्सन बैठा तो उसको पता है कि मेरे लेफ्ट और राइट में कोई नहीं बट मेरे फ्रंट में कोई है ना. उसको सामने से ये दिख रहा है फर्स्ट कि ये तो या तो ऐसे बैठ जाए,
सेकंड भाई उसने कहा नहीं नहीं है, आई वांट चेंज माय चेयर, यहाँ नहीं बैठता हूँ मैं, यहाँ बैठ के देखता हूँ. तो सेकंड पर्सन इज सिट हियर. तो देखता अच्छा मेरे लेफ्ट में कोई नहीं बट मेरे राइट में फर्स्ट पर्सन बैठा है. तो यू हैव अ सेकंड चॉइस, मतलब ये सेकंड चॉइस होगी इसकी. both are the different, both are the change, position is change. yes यस मैम, यस मैम. है ना. अब इसके लिए तो पोजीशन चेंज हो गया ना. इसने देखा कि मेरे लेफ्ट में कोई नहीं, मेरे राइट में ही है. यहाँ पे इसने देखा कि मेरे लेफ्ट और राइट में तो कोई नहीं बट मेरे फ्रंट में कोई जरूर बैठा है. तो इसने ट्राई किया नहीं नहीं ये दोनों मुझे अच्छा नहीं लगा. इसने ट्राई किया थर्ड वाला. थर्ड में इसने देखा कि अच्छा मेरे लेफ्ट राइट में कोई नहीं है लेकिन मेरे फ्रंट की इस साइड में कोई है और ऐसे कोई नहीं है. सो हाउ मेनी चॉइस ही हैव, इसके पास कितना चॉइस है. हर चॉइस में, मतलब यहाँ पर आते हैं फोर्थ पोजीशन पे इफ यू हैव टेक, तो इसके पास ऑप्शन चेंज हो जाता है. अरे इफ यू हैव टेक फिफ्थ पोजीशन देन ऑप्शन इज अदर चेंज. सो यू हैव अ पॉसिबल नंबर ऑफ वेयर द सेकंड पर्सन कैन सिट इज, इट इज 5 वे. यस इट इज क्लियर. यस मैम. समझ में आया ना कि सर्किल में क्या होता है कि आपने फर्स्ट पोजीशन वन यू हैव फिक्स कर दिया. आपने फर्स्ट पोजीशन के पास अगर कोई मतलब होता है सर्किल है, मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है, तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पर्सन व्हेन हैव सिटेड इन द चेयर, तो उसके पास ओनली वन वे हो जाए. उसको पता है मेरे लेफ्ट राइट फ्रंट में कोई नहीं, कहीं पर वे टू सेम सिनेरियो ही एंड शी हैव. सो ओनली फर्स्ट पर्सन व्हेन सिटेड इट इज हैव अ वन वे, देन सेकंड पर्सन सिटेड इट इज अ 4 वे, then third person is seated have a 4 way, so on. So it is फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा. ओके 5 4 3 2. so total then 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा. तो it is the what is this, it is the factorial 5. yes or no. Yes ma'am, Yes, factorial ma'am. 5. it is factorial 5. और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके पास 3 चॉइस था. हाँ यार you have a 3 person थे, so you have got 2 position, means it is a 2 factorial. yes it is 2 factorial. Yes ma'am. So what is the your conclusion, what is the formula for this. the formula is this n minus 1. जितना है उसको -1 करते हैं, then it is the n minus 1 factorial. means how many way you can arrange in circle, it is n minus 1 factorial. so it is clear. एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूला तो बता देते कि कैसे आया, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. इट इज दिस द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑन व्हेन सर्किल अरेंजमेंट, व्हाट इज दिस n minus 1 factorial in the circle. so it is clear. Yes I ma'am. think Clear. है ना, I think it is clear. okay so we have take some example. so at a dinner party 6 men है, 6 women is there, sit at a round table पे बैठे हैं. in how many way can they sit, if how many way, तो टोटल कितना हुआ 6 plus 6 12. so how many way, there are no restriction, मैंने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया, तो it is 12 minus 1 factorial, तो it is 11 factorial. yes it is clear. first part is. Yes ma'am. सेकंड क्या लिखा मैंने, मेन एंड वुमेन आर अल्टरनेटिव. मतलब अगर सपोज आई मेक वन सर्किल, तो इफ आई हियर सिट मेन, सो हियर इज वुमेन, देन मेन, देन वुमेन, देन मेन. ओके इज सिट लाइक दिस. सो व्हाट इज दिस, हाउ कैन यू अरेंज. सपोज पहले मैंने सिर्फ मेन को सिट किया, सपोज वी हैव टेक ओनली मेन. सो मेन सिट होने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होगी मेन को बैठने के लिए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द वे कि मेन कैन सिट. ये राउंड टेबल है आपके पास, ये मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन यू हैव 6 में, तो इट इज 6 minus 1 factorial. yes Yes ma'am. ओके तो ये फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. देन सेकंड इज दिस वुमेन. अब मुझे वुमेन तो सिट कराना, तो वुमेन के पास कितना चॉइस है, हैव अ 1 2 3 4 5 एंड 6. उसको पहले से पता है कि मेन इज सिट हियर, यहाँ पे मेन इज ऑलरेडी है. सो वुमेन के पास कितना चॉइस होगा, फर्स्ट वुमेन व्हेन हैव सिटेड इट इज 6 वे, सेकंड वुमेन व्हेन हैव सिटेड 5 4 3, तो इट इज 6 factorial.
So it is 6 minus 1 factorial multiplied 6 factorial, then it is 5 factorial multiplied 6 factorial. Yes, it is clear? Yes, ma'am. Yes. Other student, it is clear? Yes, ma'am. है ना? It is not too tough. तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? ये तो फर्स्ट टाइप तो आपको समझ में आ गया. सेकंड टाइप क्या होता है? इन हाउ मेनी वे कैन 8 different color based 8 different colors beads be threaded on a string? Okay, we have a beads, तो उसको मुझे अरेंज करना है. So what is this? When ये आपकी क्लॉक, ये अगर आपने ऐसे अरेंज किया, एक ये डायरेक्शन हुआ और सेकंड डायरेक्शन क्या हुआ इसका? इट इज क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज चल रहा है एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम, मतलब आपको जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, आपने अगर ऐसे काउंट किया वो भी वही पोजीशन आ रही हो, देन आपने ऐसे काउंट किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर द सेम, then when you find the total number of arrangement you just divide by the 2 से डिवाइड करना होता है. A necklace can be turned over clockwise and anti-clockwise arrangement are the same. ये necklace हुआ, garland हुआ, and ये जो होता है ना माला garland. So for this you have divide by 2 means after anti-clockwise आप लो या clockwise उसको लो, both are the same. So it is 8 minus 1 factorial divided by 2. तो it is the 2 से डिवाइड करना पड़ता है. जब है ना ये आपने अरेंजमेंट किया, ये अरेंजमेंट किया, यहाँ मैंने ए बी, ये आई एम राइटिंग सी. अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ. फ्लिप किया मतलब ये मैंने फ्लिप किया तो ए तो यहीं रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? बी एंड सी. तो इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेम. सो इट इज नॉट ए टू वे. इट इज जब व्हेन वी फाइंड द टोटल यू जस्ट डिवाइड बाय द 2 से डिवाइड करना, क्योंकि बोथ आर द सेम. यस, इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Clear. यस. Yes, ma'am. तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब आपके पास है ना ये नेकलेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, नेकलेस या गार्लैंड, जो फ्लावर्स के गार्लैंड्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो यू ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर उनका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सेम आ रहा है, यू जस्ट डिवाइड बाय द 2 से आप यू जस्ट डिवाइड बाय 2. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. सर्कुलर परम्यूटेशन, आई थिंक इट इज क्लियर. Yes, Yes. ma'am. So in next class we have start the combination. Okay, it is almost 3 level. If you want to, I will continue. If you want to, I will continue. Yes, Aman. It is enough. I will continue. Yes, ma'am. I will continue. It is enough. Enough, ma'am. Okay. So मैम प्रेजेंट लगा देना मैम. एनरोलमेंट नंबर कल आएंगे, कल परसों. okay.